नो डाउट। ओके स्नेहा एंड रिया, प्रथम ट्राई किया था आपने कॉम्प्लेक्स नंबर? कि कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। गिव मी अ मिनट। ओके देन फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके गुन भी हैं क्लास में। हम स्ट्रेट लाइन कर रहे थे, वहाँ हमारे 2-3 टॉपिक्स रह गए थे, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल कंप्लीट दैट स्ट्रेट लाइन, दैट वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। सो सुने, यू आर न्यू आई गेस। आपके एग्जाम्स कब से? सुने, मेरी वॉइस ऑडिबल है? एग्जाम्स कब से हैं आपके? सर 8 मार्च। 8 मार्च। ओके, नो इशू। ठीक है, हम कोशिश करते हैं जितना पोर्शन हमारा हो सकता है। अच्छा सुने, मुझे 15-20 मिनट्स दीजिएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आपका मिस हुआ है, सो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। हम बस 20 मिनट्स में टॉपिक कंप्लीट करते हैं, देन वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ओके, तो हमने लास्ट टाइम इंटरसेप्ट फॉर्म भी कर लिया था। नेक्स्ट वी हैव दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज reduce the following reduce the following reduce the following equations into normal form. Equations into normal form. Find their perpendicular find their perpendicular distance from the origin and angle between perpendicular and angle between perpendicular and the positive x-axis and the positive x-axis. First question is x minus root 3y plus 8 is equal to 0. Now Gun, what is a normal form? Normal form क्या होती है? Gun, what is a normal form? So, एक second. Okay, स्नेहा का आंसर आ गया। This is x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है स्नेहा। So
So suppose this is our y-axis, this one is x-axis, this y, and suppose this is a line. From the origin, we are drawing a perpendicular, and this is making an angle alpha. This is 0, this is p, this is a. So this distance is p, and this angle is alpha. ये हम discuss कर चुके थे. So earlier हमने questions कैसे किए थे? उसने हमें alpha दिया था, हमें p दिया था, and we have formed this equation. Now उसने equation दी है, we have to convert this into standard form, in the normal form. Okay, this distance is p, so always remember that p should always be positive. So first thing आप क्या करेंगे? You have to move this constant to the right side. So you will get this x minus root 3y, and this is equal to minus 8. ठीक है, this is the first step कि constant हमारा right side होना चाहिए, because standard form में हमारे पास right side p होता है. Now second step is, if this is, sorry, p should always be positive, क्योंकि p आपका perpendicular distance है, तो this should always be positive. तो आप क्या करेंगे? Shift this minus sign, minus से multiply कर दीजिए complete को. Let this be first, multiply 1 by minus 1. ठीक है, तो कितना हो जाएगा? माइनस एक्स प्लस रूट 3y is equal to 8. After this, divide this. Let this be equation 2. Now divide 2 by under root of minus 1 square plus root 3 का square. ठीक है, क्या किया हमने? First of all, we have shifted this constant to the right side. Then we have multiplied the complete equation by minus 1. We get this. Then we have divided equation 2 by coefficient of this. X का coefficient था -1, उसका स्क्वायर प्लस y कोफिशिएंट है √3. सो ये कितना हो जाएगा? 1 + 3 4 2. सो हमें इसे डिवाइड करना है बाय 2. बाय 2 y इज इक्वल टू 8/2 इज 4. ओके, नाउ अब हम थोड़ा सा ट्रिगो हमें यूज करनी होगी, वो मुझे पता है, आपको शायद याद नहीं होगा. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, and this one is fourth quadrant. ठीक है, always remember like this, all school to college. ठीक है, इन 4 क्वाड्रेंट्स कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं. सो आपको इसको लर्न कैसे करना है? लर्न लाइक दिस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑल स्कूल टू कॉलेज. आप सब शिफ्ट हो जाएंगे फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज. सो रिमेंबर लाइक दिस, दिस इज ऑल. So in this quadrant, all ratios are positive. जितने भी आपके trigonometric ratios होंगे, all are positive in the first quadrant. Sine is positive. Here tan is positive. Here cos is positive. ठीक है, आपको ऐसे learn करना है. All sine, tan, cos. Okay, now sine is positive. गुण sine का reciprocal क्या होता है? Sir, cos. Cosec. 1 by sine is cosec. Yes, sir. So it's mean in second quadrant sine is positive and cosec is positive. Now what's the reciprocal of tan? बिल्कुल ठीक है, इसमें cot है ना. So in this quadrant tan is positive and cot is positive. What is the reciprocal of cos? Reciprocal of cos is sec. बिल्कुल ठीक है इसमें. ठीक है, so it in the second quadrant sine and cosec is positive and other ratios are negative. It's mean tan, cot, cos, sec सब यहाँ negative हो जाएंगे. Similarly in the third quadrant cot and tan is positive, other ratios are negative. Similarly here cos and sec is positive, other ratios are negative. ये सबको क्लियर हुआ? बच्चे अभी ट्रिगो हमने नहीं किया, सो मुझे पता है आपको प्रॉब्लम होगी, बट इसको थोड़ा सा कोशिश कीजिए समझने की, क्योंकि ये कम्प्लीटली इसके ऊपर डिपेंड है, और फिर आपको वहाँ थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में. सबको इतना क्लियर हो गया? किसी को डाउट है इसमें? क्यों बच्चे फिर आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, तो मुझे प्लीज़ बताइए अगर डाउट है किसी को. गुण, रिया, स्नेहा. ओके, स्नेहा का रिप्लाई मिल गया. सुने एंड युवराज प्रथम.
एनी डाउट यहाँ तक? सर ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। नहीं युवराज, वी आर डूइंग दिस स्ट्रेट लाइन, बट उसमें ट्रिगो का यूज आ गया है। जी सर। सो आई गेस किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ इसको अगर हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. सो cos alpha हमारे पास आ गया, cos alpha is equal to -1/2 and sin alpha is equal to √3/2. ओके, स्नेहा मुझे प्लीज़ आप बताइए ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? cos is negative and sin is positive. cos is negative, थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें अगर थर्ड में हम देखते हैं तो यहाँ तो साइन भी नेगेटिव है। इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली tan एंड cot are पॉजिटिव, साइन भी नेगेटिव होता है, सो दिस डू नॉट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। युवराज कौन से क्वाड्रेंट में? बिल्कुल ठीक है इसने। युवराज किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। रिया, गुण, सुनय किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये? प्रथम। क्यों बच्चे, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा ना, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड द क्वाड्रेंट। गुण बिल्कुल ठीक है, प्रथम, सुनय एंड रिया। प्लीज चेक ऑल द क्वाड्रेंट्स, किस क्वाड्रेंट में आपका गुण बिल्कुल ठीक है। सर ये थर्ड में क्यों नहीं लाई कर रहा? थर्ड में साइन क्या होता है युवराज? सुनय बिल्कुल ठीक है, सर नेगेटिव। साइन नेगेटिव होता है, बट यहाँ साइन क्या है? ओह ओके। ठीक है, ओके, ऑलमोस्ट सबके आंसर मुझे मिल गए। ओनली रिया इज रिमेनिंग एंड प्रथम। रिया किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये? मुझे प्लीज देखिए, जिनको समझ में नहीं आए, कॉस इज नेगेटिव, साइन इज पॉजिटिव। तो सबसे पहले हमें चेक करना है साइन पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट और सेकंड में। बट फर्स्ट में तो सब नेगेटिव, सॉरी सब पॉजिटिव होते हैं। सो इन द सेकंड क्वाड्रेंट दिस कॉस इज नेगेटिव, so this line the second quadrant, cos is negative, sin is positive. Okay, now अब कोई मुझे एंगल बता सकते हैं for what value of alpha we will get cos -1/2 and sin √3/2? मुझे कोई बताएगा एंगल? 60 डिग्री। ओके, गुण चेक करें एक बार, cos 60 कितना होता है गुण? cos 60 is what? So 1/2 1/2, बट यहाँ क्या है? -1/2. इसका सही है फिर? So 120 degree. हाँ 120 डिग्री, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो ये तो आपने डायरेक्टली बता दिया है ना। अब हम चेक करते हैं कि हम कैसे फाइंड करेंगे। सबको प्रॉब्लम क्लियर हुई? आपको ये तो पता है पॉजिटिव के लिए एंगल क्या है, बट आपको ये नहीं पता नेगेटिव के लिए क्या होता है, ठीक है। तो एक हमारे पास मेथड है, उसको बच्चे प्लीज़ ध्यान से कीजिए। मेथड इज, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कि आपका जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो वो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था, दैट दिस लाइन द सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद आपकी जो भी वैल्यू है, ये तो हो जाएगा अगर ये आ गया तो, आपकी जो भी वैल्यू है उसके लिए पॉजिटिव के लिए आप एंगल फाइंड कीजिए। तो पॉजिटिव के लिए गुण एंगल क्या होता है? 1/2 कब आता है? अभी आपने बताया 60 डिग्री, ठीक है। बट वी नीड दिस एंगल इन द सेकंड क्वाड्रेंट, हमें सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए। सो ऑलवेज यूज, इसको बच्चे कहीं नोट कीजिए, ऑलवेज यूज पाई एंड 2 पाई। आपको सिर्फ पाई एंड 2 पाई यूज करना है। सो हम क्या कर सकते हैं, when we will write 180 minus 60, ठीक है। अब 180 minus 60 क्या होता है? ऑलवेज रिमेंबर 180 एंड 360 में कोई भी एंगल में, कोई भी रेशियो में चेंज नहीं होता है। सो दिस रिमेन cos 60 एंड गुड 180 minus 60 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? गुड 180 So minus, first, देखिए दिस इज 0। अब ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो गया। उसमें अगेन 90 ऐड कर दीजिए, दिस इज 180 डिग्री। अगेन 90 ऐड कर दीजिए, दिस इज 270 डिग्री। अगेन ऐड 90,
you will get 360. ठीक है, ऐसे होता है 0, 90, 180, 270, 360. इट्स मीन 0 एंड 90 के बीच में जो भी एंगल होंगे दैट विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड 90 एंड 180 के बीच में जो भी एंगल होंगे दैट लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट. बिटवीन 180 एंड 270 लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट. बिटवीन 270 एंड 360 लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है. सो गुन नाउ टेल मी दिस एंगल लाई इन विच क्वाड्रेंट? 180 minus 60. सर सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट है ना. सो 180 minus 60 होता कितना है? cos 120 डिग्री. तो हमें अल्फा कितना मिल गया? अल्फा इज नॉट 60, अल्फा इज 120 डिग्री. ठीक है. सो दोबारा हम रिपीट करते हैं कैसे करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड द क्वाड्रेंट. जो भी वैल्यू है उसके लिए हमें पहले पॉजिटिव के लिए एंगल फाइंड करना है, फिर एज पर द क्वाड्रेंट हमें उस एंगल को शिफ्ट कर देना है. सो आई गेस ये हम बाद में करेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन सब ट्रिगो के करते हैं ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए. ठीक है. नाउ साइन अल्फा इज इक्वल टू -1/2. ठीक है. एंड cos alpha is equal to -√3/2. First of all, tell me in which quadrant this will lie. गुण बिल्कुल ठीक है. स्नेहा बिल्कुल ठीक है आंसर. और सब प्लीज बताएंगे आंसर. युवराज, प्रथम, रिया, सुने. First tell me a quadrant in which this ratio will lie. बिल्कुल ठीक है रिया. ठीक है. उसको हम चेक करते हैं. सुने बिल्कुल ठीक है. फर्स्ट थिंग हम इसको चेक करते हैं. दिस फर्स्ट, सेकंड, third and fourth. So sine is negative, cos is negative, which so ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. नाउ मेथड हमारा क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक फॉर पॉजिटिव वैल्यू. सो 1/2 कब आता है? गुण 1/2 इन केस ऑफ साइन कब होता है? सर 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री. ठीक है. बिल्कुल ठीक है. इसमें साइन 30 इज 1/2. नाउ किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है. तो हमने आपसे क्या कहा था कि यू हैव टू यूज 180 डिग्री एंड 360 ओनली. ओके. सो दिस इज 180. सो 180 में हम ये 30 ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे सो दैट वी विल रीच टू थर्ड क्वाड्रेंट? ये प्लीज बताइए. सर ऐड. ऐड करेंगे है ना. तो हम कैसे लिख देंगे? साइन 180 प्लस 30. ठीक है. कितना हो गया? साइन 210. सो अल्फा कितना हो गया? 210. ठीक है. मैथड क्लियर हुआ. इसको चेक कर लें कि आंसर हमारा करेक्ट है या नहीं. 180 में कोई चेंज नहीं होता. सो दिस इज साइन 30 हो गया. दिस लाइन द थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव हो गया. दिस इक्वल टू -1/2 हो गया. तो अल्फा कितना हो गया? अल्फा इज 210. सबको क्लियर हो गया? गुण, युवराज, स्नेहा, सुनय, रिया, प्रथम, क्लियर हुआ सबको ये? ओके. यस सर. एक और एग्जांपल लेते हैं. नेक्स्ट इज suppose we have sine alpha is equal to -1/√2 and cos alpha is equal to 1/√2. So first of all, tell me in which quadrant this will lie. सर फोर्थ क्वाड्रेंट. बिल्कुल ठीक है. स्नेहा, गुण बिल्कुल ठीक है. नाउ फॉर दिस वन आप पहले मुझे बताइए व्हाट्स द एंगल फॉर पॉजिटिव वैल्यू? सर 45 डिग्री. Alpha is not alpha, 45 degree. This is first, this is second, this is third, and this is fourth. We need the angle in the fourth quadrant. मैंने हमेशा आपको बताया either you have to use 180 or 360. बताइए मुझे क्या यूज करेंगे आप? सर 360 minus 45. बिल्कुल ठीक है.
sine 360 minus 45. So this will give you sine 350. ठीक है, अब बच्चे कहते हैं कि 180 में हम ऐड कर दें दिस कंप्लीट, वो नहीं करना है, 90 से ग्रेटर ऐड नहीं करना। ठीक है, बच्चे कहते हैं जैसे 135 भी ऐड करते हैं इसमें, सो वी विल रीच टू फोर्थ क्वाड्रेंट, वो नहीं करना है। कभी भी 90 से ग्रेटर एंगल ऐड नहीं होगा, दैट्स व्हाई वी कांट यूज 180, है ना, हम 360 करेंगे। इसका मतलब सेकंड और थर्ड में जब एंगल चाहिए वी विल यूज 180, और फर्स्ट में तो पॉजिटिव होते हैं सर, फोर्थ में जब चाहिए वी विल यूज 360। इसमें किसी को डाउट है? No, sir. ओके स्नेहा, युवराज क्लियर हुआ ये? रिया, सुनय, प्रथम, युवराज क्लियर हुआ? ओके ठीक है, सो अब आपको ये पॉइंट आ गया, अब ये आपको ट्रिगो में भी हेल्प करेगा। ओके सो हमने इसको यहाँ तक किया था दैट cos 60 1/2 अल्फा हमारे पास 120 आ गया था। ठीक है, ये था हमारे पास कि cos अल्फा इज -1/2 एंड साइन इज √3/2, अल्फा 120 आ गया। सो आवर इक्वेशन इज x cos 120 डिग्री प्लस y sin 120 इज इक्वल टू दिस इक्वल टू 4। नाउ कंपेयर विद दिस, तो अल्फा कितना हो गया? अल्फा इज 120 एंड p इज 4। हमें यही फाइंड करना था, p एंड अल्फा। क्लियर हुआ गुण? और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आई गेस नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक नहीं हुआ था। गुण, युवराज, प्रथम, क्लियर हुआ ये? Yes, sir. ओके ओके, देन इसको प्लीज नोट कीजिए, वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट। मुझे जब नोट हो जाए तो प्लीज बता दीजिएगा, वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ कंप्लीट हो गया, गुड, स्टार्ट करें नेक्स्ट। Yes, sir. नेक्स्ट सेकंड इज दिस x minus y is equal to 4। बताइए मुझे व्हाट्स आंसर ऑफ दिस, यू हैव टू फाइंड अल्फा एंड p। सर हम इसको भी डिवाइड करेंगे x और y के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर के रूट से। जी गुण, हमारा जो मेथड है वो ये, फर्स्ट शिफ्ट द कांस्टेंट टू राइट साइड, make it positive and divide with under root of coefficient square of x and y।
नहीं स्नेहा 240 तो नहीं आ रहा. अगेन चेक. गुण बिल्कुल ठीक है आंसर 315 डिग्री. दिस इज करेक्ट. एंड पी क्या है गुण? पी इज 4/√2. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. ठीक है बिल्कुल ठीक है गुण. और सब प्लीज देखिए. कांस्टेंट राइट साइड में पॉजिटिव है सो हमें कुछ नहीं करना. वी जस्ट हैव टू डिवाइड दिस विद 1² प्लस -1² विच इज इक्वल टू √2. तो ये हो जाएगा x minus y/√2 is equal to 4/√2. This is equal to x/√2 minus y/√2. ठीक है. इसको हम क्या लिख देंगे 2 into 2 सो ये हो जाएगा 2√2. नाउ cos alpha is 1/√2 and sin alpha is equal to -1/√2. So Sneha, in which quadrant this will lie? किस quadrant में lie करेगा? बिल्कुल ठीक है स्नेहा. फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया है. नाउ इन बिल्कुल ठीक है रेया. इन फोर्थ क्वाड्रेंट हम साइन चेक करते हैं. तो स्नेहा साइन 1/√2 पॉजिटिव वैल्यू कब होती है? व्हाट्स द एंगल व्हेन दिस इज पॉजिटिव? बिल्कुल ठीक है रेया. स्नेहा पॉजिटिव वैल्यू के लिए एंगल क्या होगा? 1/√2 के लिए एंगल क्या हो जाएगा? इसमें अब पॉजिटिव के साइन इज इक्वल टू 1/√2 है ना. तो 1/√2 का बदल साइन 45 डिग्री. नाउ दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? 360 और 180. दिस इज 360 एंड दिस इज 180. सो हम क्या यूज करेंगे इफ यू नीड दिस इन द फोर्थ क्वाड्रेंट? 360. बिल्कुल ठीक है रेया. बिल्कुल ठीक है स्नेहा. तो ये कितना हो जाएगा? साइन 360 माइनस 45 विच इज इक्वल टू व्हाट? साइन 315 डिग्री. ठीक है. सो अल्फा कितना हो गया? अल्फा इज 315 डिग्री. तो हम क्या करेंगे इन दिस वन? हम इसको लिख देंगे x cos 315 माइनस y sin 315 इज इक्वल टू 2√2. ठीक है. सो दिस इज योर आंसर. p इज 2√2 एंड अल्फा इज 15 डिग्री. मुझे प्लीज़ मुझे बताइए अगर किसी को डाउट है. अदरवाइज बस हमारी 2 टाइप्स रह गई हैं. हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं. देन वी विल स्टार्ट सीक्वेंस एंड सीरीज. इसको प्लीज़ नोट कीजिए. मुझे आपके रिप्लाई नहीं मिल रहे हैं सो आई गेस हो गया कंप्लीट. बस ये बहुत सिंपल टाइप है. डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन distance between a point and a line. ठीक है. So suppose we have this y-axis, this is x-axis, this y. This is a straight line. This have the equation ax plus by plus c is equal to 0. And we have a point. This point is x1 comma y1. Let this be p. हमने यहाँ से एक perpendicular draw कर दिया. This be the perpendicular. Let this be p. We have to find the distance between this point and this line. ठीक है. We have to find the distance between this point and this line. So point है आपके पास x1 comma y1
एंड लाइन है आपके पास, लाइन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक। वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, तो इसको बस मॉड यहीं तक यूज़ करते हैं, ये हटा देते हैं मॉड हम यूज़ करते हैं टू हियर, ठीक। सो फॉर्मूला हो गया हमारा d इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। सो आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शिफ्ट द कांस्टेंट टू द लेफ्ट साइड, कांस्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड होना चाहिए, उसके बाद आपके फॉर्मूला पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ वी हैव अ लाइन 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 and we have a point is 1, 2, we have to calculate the distance, so distance क्या हो जाएगा, what ax1, this is a x1 कितना हो गया 1 प्लस by1 3 into 2 प्लस 6 by under root of a square is what 2 square प्लस 3 square, so ये कितना हो गया 2 प्लस 6 8 6 14, ठीक है। मॉड है तो पॉजिटिव ही आया था, है ना, नेगेटिव होता तब भी हम पॉजिटिव लेते हैं। दिस इज 4 प्लस 9, दिस अंडर रूट ऑफ 30, वी गेट दिस आंसर। क्लियर हुआ सबको? इसको अभी नोट नहीं करना है, इसमें ओके। इसमें जब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं ना, तो देखिए हमारे पास कांस्टेंट लेफ्ट साइड होना चाहिए, वो नॉर्मल फॉर्म थी, वहाँ डिस्टेंस हमें राइट साइड चाहिए था, सॉरी पी हमें राइट साइड चाहिए था, यहाँ सब आपको वैल्यूज लेफ्ट साइड शिफ्ट करनी है, क्योंकि वी हैव टू राइट दिस फॉर्मूला। अगर आपने इक्वल टू के राइट साइड शिफ्ट कर दिया तो फॉर्मूला पुट नहीं हो सकता। सो फर्स्ट शिफ्ट दिस टू लेफ्ट साइड, ठीक है, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला ax1 प्लस by1 प्लस c बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसको नोट मत कीजिए, जस्ट नोट दिस फॉर्मूला एंड दिस फिगर, फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट हो जाए तो प्लीज बता दिएगा। जी नोट हो गया सबका, स्टार्ट करें फिर। Yes, sir. ट्राई दिस क्वेश्चन। Try this question, tell me the answer. सुने बिल्कुल ठीक है आंसर युवराज। युवराज वैल्यूज पुट करनी है ना सब, फॉर्मूला क्या होता है युवराज? गुड नहीं, नॉट करेक्ट,
प्लीज चेक कीजिए कैलकुलेशन। ax1 प्लस बी y1 प्लस सी बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके सर। तो x1 इंटू y1 भी पुट करना है। रिया बिल्कुल ठीक है आंसर। सर ये तो पुट कर दिया था, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 4 आ जाएगा इन टोटल अगर हम कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। फाइनल तो मुझे फिर उसके बाद दिस इज कोफिशिएंट्स जो है सर कोफिशिएंट से तो डिवाइड हो जाएगा वो आके, तो 3/4x हो गया और माइनस y हो गया माइनस ऑफ क्या कहते हैं 26/4 हो गया इज इक्वल टू 0। ये देखते हैं। दिस इज 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, -4 इंटू -5 हो जाएगा +20, -26 ऐसे ही रहेगा बाय अंडर रूट ए स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब -4 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? तो दिस इज -5 का स्क्वायर। हाँ यू राइट, ये लेते हैं हम ए एंड बी, हम इसको लेते हैं। ओ ओके सर, मैंने उसको ले लिया। हाँ 3 बाय ये हो गया 5, सो 3/5 इज द आंसर। स्नेहा बिल्कुल ठीक है आंसर। ठीक है, सो आई गेस सबको समझ में आ गया, किसी को डाउट तो नहीं है? युवराज क्लियर हुआ? स्टार्ट करें नेक्स्ट। सर हम न्यूमरेटर में ax1 जो है उसमें, एक मिनट सर, तो हमने इसमें x1 और y1 कौन से लिए हैं, जो इक्वेशन जो लाइन की इक्वेशन है? हाँ युवराज, हमारे पास लाइन इक्वेशन ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड वी हैव अ पॉइंट x1 कॉमा y1। ठीक है, यस सर। फॉर्मूला जो होता है हमारा, दिस इज ax1, a इंटू x1 b इंटू y1 प्लस c बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a इंटू x1 का मतलब a ये होगा, x1 ये होगा। ओके सर। ठीक है, सो ये 9 हो गया। जी सर। Now this is b, this is y1, so -4 into -5 20 हो गया, हाँ जी सर। ये -26 हो गया, so this is equal to 3/5। जी सर। ठीक है, so start करें next। यस सर। Now last topic of straight line is distance between parallel lines, distance between parallel lines। ठीक है, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि सपोज टू लाइंस आर पैरेलल, तो फर्स्ट हैव दिस इक्वेशन एंड सेकंड हैव दिस इक्वेशन by plus c2 is equal to 0। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर अगर टू लाइंस पैरेलल हैं तो उनके जो x और y के कोफिशिएंट होते हैं दैट इज इक्वल, वो सेम होते हैं, सिर्फ डिफरेंस आते हैं c1 c2 में। ठीक है, इफ लाइंस आर पैरेलल तो x और y के जो कोफिशिएंट होंगे दैट आर इक्वल, सिर्फ जो डिफरेंस आएगा दैट इज इन c1 c2। सो यहाँ जो डिस्टेंस हमारा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज x एंड y एक्सिस, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस वन इज सेकेंड लाइन, this x dash, this x, this y, this y dash, ये डिस्टेंस हो गया d। ठीक है, फर्स्ट हैव द इक्वेशन ax प्लस by प्लस c1, सेकेंड हैव द इक्वेशन ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दीज आर टू इक्वेशन। सो d जो हो जाता है हमारा डिस्टेंस हो जाता है c1 माइनस c2 बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, सो इन दिस केस क्या होता है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम होते हैं इफ टू लाइंस आर पैरेलल, सिर्फ डिफरेंस जो आता है दैट इज इन c1 c2। सो फॉर्मूला क्या हो जाता है c1 माइनस c2 बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम है तो सिंपली अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट एग्जाम्स में या बुक में कभी क्वेश्चन ऐसा होता है 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड वी हैव अदर 4x प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। नाउ कोई मुझे बता सकता है कि अब तो ये सेम नहीं है, कैसे सॉल्व करेंगे? सर फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, या तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इज 4x प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस।
तो हमेशा याद रखना है इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस ये दोनों सेम होने चाहिए, अगर नहीं है देन मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, वो सेम आ जाएंगे, देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला d इज इक्वल टू c1 माइनस c2 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट है बच्चे तो प्लीज बता दीजिए, अदरवाइज नोट दिस वन, हम एक क्वेश्चन करते हैं, देन दिस चैप्टर इज कंप्लीट। Try this question. Just. Try this question. Find the distance between these two parallel lines. गुण बिल्कुल ठीक है आंसर। युवराज बिल्कुल ठीक है। स्नेहा बिल्कुल ठीक है आंसर। सुने बिल्कुल ठीक है, 2/5 इज द करेक्ट। Okay, Ria, what is the answer in this case? बिल्कुल ठीक है रिया। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज कंप्लीट, स्ट्रेट लाइन हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। ठीक है, सो प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी डाउट है तो बताइए, वी विल डिस्कस इन द क्लास। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, फर्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल है, फिर बाद में हम फॉर्मुलेस करेंगे। बच्चों अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना, क्योंकि रेगुलर क्लासेस में हमने काफ़ी टाइम में ये चैप्टर्स कंप्लीट किए थे, तो हम थोड़ा सा फास्ट उसमें कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को डाउट है, समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ बताइए। राइट दिस क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट फाइव टर्म्स, write the first five terms of each of the sequence each ठीक है, दिस आर क्वेश्चन, यू हैव टू राइट द फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ दिस। तो आपको पता है ए एन गिवन है, सो व्हेन यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 1 into 1 plus 2 which is equal to 1 into 3 which is equal to 3. When you have to find the second term, this is 2 plus 2 which is equal to 2 into 4 which is equal to 8. Then we will find third term, this is 3 plus 2, so we get 3 into 5, this is equal to 15. Next we have fourth term, which is equal to 4 plus 2, and this is equal to 4 into 6, which is equal to 24. Next one,
ये क्लियर हुआ? किसी को डाउट तो नहीं है इन दिस वन? आपको टर्म्स फाइंड करनी थी, फर्स्ट 5 टर्म्स, तो हमने सिर्फ क्या किया, इन प्लेस ऑफ एन वी हैव पुट 1 2 3 4 5। ओके, सो गुण, रिया, स्नेहा, सुनय, युवराज, सबको क्लियर हुआ? प्रथम, ओके रिया, और सब स्टूडेंट्स प्लीज बताएंगे ये क्लियर हुआ? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? गुण, स्नेहा, ओके स्नेहा, ओके सुनय, गुण एंड युवराज, प्रथम क्लियर हो गया? ओके गुण, ठीक है। प्रथम आई गेस आपके मैसेजेस मुझे नहीं मिल रहे हैं, एंड युवराज आप भी, तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, फर्स्ट एक्सरसाइज आप कर लेंगे, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? दिस इज एपी। So AP is what? Property क्या होती है AP की? Suppose we have this sequence 2, 4, 6, 8, 10 and so on. So if you check that first term is 2, second term is 4, third term is 6, fourth term is 8, fifth term is 10. So if you find A2 minus A1, then this will give you 4 minus 2 which is equal to 2. अगर आपने A3 माइनस A2 फाइंड किया देन यू गेट 6 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट अगर आपने A4 माइनस A10 फाइंड किया देन यू गेट 10 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो A1 A2 A3 आपने सबके अगर डिफरेंस फाइंड किया दैन डिफरेंस इज सेम एंड दिस डिफरेंस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस D। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? यहाँ जो कॉमन सर डिफरेंस होता है दैट इज सेम, A4 माइनस A3 होगा, A10 सॉरी A4 माइनस A3, ठीक है। दिस इक्वल टू, this is A3, this is equal to 2. So there's a common difference. So अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये जो डिफरेंस होता है टर्म्स के बीच में, जो डिफरेंस होता है दैट इज सेम, दिस इज अ कॉमन डिफरेंस। क्लियर हुआ ये? किसी स्टूडेंट को डाउट है इसमें? इतना क्लियर हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? यस सर क्लियर है। यस सर। ओके, सो ये सब 10th का पार्ट था ना। फिर 10th में आपने जनरल टर्म का फॉर्मूला किया था, जनरल टर्म ऑफ एपी, मुझे कोई बताएगा फॉर्मूला जनरल टर्म ऑफ एपी? सर A of n is equal to 2A plus n minus 1D. कुछ ऐसा, A plus n n minus is 1D. equal to a plus n minus 1 into d. What is a? There is a first term. So A is the first term, n is the number of terms, and D is the common difference. बिल्कुल ठीक है Raj. This is And an is the last term. this is a common difference, and an is the nth term. ठीक है, an is nth term. ठीक है, this is general term of AP. बच्चे प्लीज नोट डाउन दिस, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। Please try this question. First term 2 है, common difference is 4. Find the third.
युवराज सुने रिया बिल्कुल ठीक आंसर। गुण बिल्कुल ठीक है। स्नेहा व्हाट इज आंसर? स्नेहा व्हाट इज आंसर इन दिस केस? बिल्कुल ठीक है स्नेहा, ठीक है। सो ये सिंपल था, दिस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज if in an AP if mth term is n and the nth term is m, find the find the pth term. Find the pth term. Please try to do this question. ठीक है युवराज, दिस इज आंसर n plus m minus p, ठीक है। ओके, ट्राई करते हैं क्वेश्चन। If mth term is n, so am is equal to n, and nth term is n, a is equal to m. We have to find the pth term. A p हमें calculate करना है। Let करते हैं, let the first term be a, let the first term be a, and common difference be d, and common difference be d, common difference be d, ठीक, common difference be d। So, हमें अब क्या करना है इसमें, ए एम जो है हमारे पास, ये कितना होता है, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये एम है, सो ए प्लस एम माइनस वन डी, एंड ए प्लस एम माइनस वन डी जो है, दिस इज इक्वल टू एन, ठीक है, ये गिवन है। नाउ ए एन इज व्हाट, दिस इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू व्हाट, एम, ठीक है। सो वी हैव दिस इक्वेशन, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। नाउ इसे सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये क्या होगा, ए कैंसिल हो जाएगा,
ये आ जाएगा m माइनस वन डी माइनस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू n माइनस m. सो टेक d कॉमन फ्रॉम दिस, तो ये हो जाएगा फिर m माइनस वन माइनस n प्लस वन, दिस इज इक्वल टू n माइनस m. सो ये कितना हो जाएगा, d इज वन कैंसिल, वी गेट m माइनस n इज इक्वल टू n माइनस m. सो d कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू n माइनस m बाय m माइनस n. सो टेक नेगेटिव कॉमन, सो ये आ जाएगा m माइनस n by m minus n, so this you will get minus 1. So the value of d is minus 1. ठीक है, d आपके पास minus 1 आ गया. Now put this value of d in any equation. Let this be first, let this be second. किसी भी equation में find करना है and we will find the value of a. तो इसको please यहाँ तक note कीजिए, then we will move to next part. ठीक है, युवराज एंड गुण, रिया, स्नेहा, सुने, प्रथम, सबने किया कंप्लीट गेटिंग दिस? सबने नोट कर लिया? 1 मिनट सर. सर मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है इसके बाद क्या करना है सर, मेरा यहाँ तक आ गया सर. हाँ, अब देखिए युवराज, हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द pth टर्म. एंड Yes. स्नेहा बिल्कुल ठीक है, स्नेहा का आंसर आ गया. सो फॉर दिस वी नीड फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस तो आ गया माइनस वन. वी विल पुट दिस कॉमन डिफरेंस इन एनी ऑफ द इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड. सर उससे बट हमें n की वैल्यू तो पता ही नहीं है ना क्या है. हमारा आंसर भी तो n और m की टर्म्स में ही आ रहा है. तो हम क्या करेंगे, वी विल पुट दिस वैल्यू, हमारी a आ जाएगा, a को हम यहाँ पुट कर देंगे, हमारे पास p टर्म आ जाएगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसमें पुट करते हैं a प्लस एम माइनस वन इंटू डी. a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज सर ये मैंने कर लिया था, a की वैल्यू n प्लस m माइनस वन आ गई यहाँ से. ओके. अभी देखते हैं इसमें. सर हो गया. हाँ हो गया, ठीक है. यस सर आ गया. ओके. ठीक है, सो आई गेस सबको अब ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हुआ. स्नेहा का तो आंसर आ गया था. ओके. हाँ, गुण, रिया, सुने, युवराज, प्रथम. ओके, युवराज का भी हो गया. गुण, रिया, सुने, प्रथम, समझ में आ गया ये? यस सर. ओके. ओके सुने, ओके रिया. ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करें. सबने नोट कर लिया? नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट इज सम ऑफ n terms of an AP. ठीक है, सम ऑफ n terms of an AP. सो Sn क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n बाई टू a plus n minus 1 into t. This is a formula to calculate the sum of an AP,
n is what? N is number of terms. Number of terms. A is what? First term. First term. D is what? Common difference. D is common difference. Okay. So there is a formula to calculate the sum of n terms of an AP. सर a plus an भी तो होता था ना A plus an ये होता था Sn is equal to n by 2 by 2 A a plus a है ना L और An is the same thing. yes Next we have this formula कि अगर आपको last term given है L is the last term. If you have the number of terms you have last term then you can use this formula also that Sn is equal to n by 2 A plus L. ठीक है प्लीज नोट डाउन दिस फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं. done sir Okay, ठीक है. Then try this question. Find the sum of odd integers from 1 to 2001. ठीक है. Find the sum of odd integers from 1 to 2001. Please try this. Sum find करना है. First of all, you have to write the sequence. So odd integer from 1 to 2001. So first is 1. Next term क्या होगी? So 3, 3. Next one 5. 5. Next 7 and so on up to 2001. Now what is the formula? Formula is Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. ठीक है. या तो ये कर सकते हैं या फिर हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज योर चॉइस. ओके यहाँ a क्या है हमारे पास? व्हाट इज a? गुण a क्या होगा? The 1, 1. व्हाट इज d? 2, बिल्कुल ठीक है. 3 minus 1 2. स्नेहा ठीक है. देन व्हाट इज n? व्हाट इज n इन दिस केस? 1000. 1000. चेक करेंगे है ना. सो n नहीं है. वी हैव दिस लास्ट टर्म. दिस इज द लास्ट टर्म. तो यहाँ से हम n फाइंड कर लेंगे टोटल टर्म्स कितनी है. बट हाँ 1000 ही होगा. सो an is equal to we have this formula a plus n minus 1 into d. ठीक है. Now what is an? An is 2001. What is a? n minus 1 into d is what? 2. So shift this one. तो ये कितना हो गया? 2001 minus 1 is equal to n minus 1 into 2. So ये हो गया आपके पास 2000. This is equal to n minus 1 into 2. So you will get n minus 1 is equal to 2000 by 2. This is equal to 1000. And n is equal to 1000 plus 1 which is equal to 1001. युवराज बिल्कुल ठीक था. So this is n. ठीक है. 1001. So we have this formula or we have this formula n by 2 a plus l. आपके पास n भी है. You have a, you have the last term. Last term is 2001. Please calculate this. Tell me the answer. Answer क्या होगा? नहीं इसमें हाँ प्लीज़ चेक करेंगे कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है. और रिया का आंसर बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक है रिया. दिस आंसर.
नहीं स्नेहा, दिस इज नॉट करेक्ट. करेक्ट आंसर इज दिस वन, 1002,001. ठीक है, रिया का आंसर बिल्कुल ठीक था. युवराज, दिस इज द करेक्ट आंसर. प्लीज चेक कीजिए इसको. डेसिमल में तो आएगा नहीं रिया. हाँ, गुण बिल्कुल ठीक है. सर बट 202,303 आ रहा है, तो वो ये कैसे होगा? वैसे जो 1001 को 2003 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका लास्ट में 3 तो आ ही नहीं सकता सर. मतलब लास्ट में 2 तो आ ही नहीं सकता सर, तो डिवाइड करोगे तो कैसे होगा? युवराज, ये ना 1001 इंटू 1001 वो केस ने. सर बट 2003 होगा ना? कैसे? फर्स्ट टर्म इज 1. 2a प्लस लास्ट टर्म हो जाता है. हाँ, या तो हम ये यूज करते हैं, 2a नहीं होता ना युवराज, a प्लस l होता है. ओके सर, अच्छा वहाँ गलती हो गई. ठीक ठीक. ओके स्नेहा, स्नेहा का भी आ गया, गुण का भी आ गया. ओके, सो आई गेस सबने कर लिया होगा. युवराज, जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. हो गया सर, 1001 का होल स्क्वायर ही तो है. हो गया. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टर्म्स how many terms how many terms of the AP minus 6 minus 11 by 2 minus 5 are needed to give the sum minus 25. ठीक है, how many terms of the AP are needed to give the sum minus 25? So in this case we need to find the n. We have all the values, we have to find the n. Please try कीजिए.
बिल्कुल ठीक है युवराज, दिस इज द करेक्ट आंसर. Sn given है -25. We have a -6. We have to find the d, which is -11/2 -6, which is equal to -11 -12 by 2, which is equal to -23 by 2, which is equal to -11.5. आपके पास ये सारी वैल्यूज हैं. नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into t. ठीक है. Sn is what? -25. n by 2 twice of a का मतलब -12 plus n minus 1 into d. d is what? -23 by. सर डी में हम -6 नहीं करेंगे. Okay, sorry, -11 by 2 minus plus. So ये आ गया आपके पास 1 by 2. This is 1 by 2. So -25 is equal to 2 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं. So we will get n, and this is -12 plus, इसको भी फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. ये हो जाएगा आपके पास n minus 1 by 2. So this will become -50 is equal to n. Take LCM. So this is -24 plus n minus 1. Now again cross multiply, you will get -100. This is equal to -24n plus n square minus n. So this will give you -100 is equal to -25n plus n square. This is equal to n square minus 25n plus 100 is equal to 0. ठीक. Now factorize this. कितना हो जाएगा? n square minus 20n minus 5n plus 100 is equal to 0. So this is n minus 20 minus 5 and minus 20 is equal to 0. So n is equal to 5 or 20. ठीक है, this is the answer. n is 5 or 20. ठीक है, युवराज का आ गया था. रिया, स्नेहा, गुण, सुने, सबको क्लियर हुआ ये? ओके स्नेहा, गुण, रिया एंड सुने. मुझे प्लीज बताइए. ओके इसमें हाँ. Yes, sir. Okay. This you have to do 1 to 13 क्वेश्चन. ठीक है. सीक्वेंस एंड सीरीज में फर्स्ट एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है. देन सेकंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 13 प्लस स्ट्रेट लाइन भी कंप्लीट हो गई है तो उसके भी क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा. ठीक है. कल सेम टाइमिंग हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9:30. अगर आपके डाउट्स होंगे पहले वो डिस्कस कर लेंगे. देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है. ओके देन, थैंक यू. Thank you, sir. ओके, यू आर वेलकम.